गहरी सांस, breathe in and breathe out. Again, breathe in and breathe out. We chant Om 3 times. Breathe in. Om. Om. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव। So somebody asked me, what is Nadi Jyotish? But before that, अच्छा Hindi, English, anybody need only Hindi or only English? Let me know. Hindi, English, both are fine. Okay. So Both mix. both mix are fine. Okay. So what is Nadi astrology? Before that, you need to understand what is astrology. So Jyotish astrology is a GPS of life events. I say this. Okay, like we use Google to go from one place to another place to know is there any traffic, is there an alternative way, what is the best way to reach, how fast we can reach. Same way, astrology is a GPS of life through which we can plan our things, any event, anything in the life in a much better way, and it gives us wisdom, awareness, and I would say it's a strong pillars towards the path of spirituality and enlightenment. Because once you know your karma, जब आपको पता होता है कि आपके कर्म क्या हैं, कैसे हैं, आप क्यों आए हैं, what is the purpose of yours, what you have to do, then things are much sorted out in life. Why you got such a spouse, either good or bad. Why you got such kids, why you have such parents or whatever, wherever is the problem area. See, we don't usually whatever is good we are happy, we don't think much about it. हम जो अच्छा होता है उसके लिए तो ज्यादा सोचते नहीं, जो बुरा हो जाता है, कहीं गलत शादी हो गई, कुछ गलत हो गया तो बहुत सोचते हैं, बहुत दिमाग लगाते हैं कि कैसे जो है इस मिजरी से निकला जाए। तो जब आप अपना चार्ट देखते हैं, व्हेन यू सी योर चार्ट, व्हाट इज चार्ट? चार्ट इज बेसिकली कर्मा, योर प्रारब्धा एंड संचित all together at the time of birth, when you are born in certain place at a certain longitude, latitude, as per, you know if you read autobiography of a yogi, there Paramahansa Vivekananda ji has written, when the karmic alignment happens, it's a, there's a full phrase, I'm just taking out the gist of it, that your karma and the universal consciousness, when they align, then at that time, that place, your birth happens. When your karma, your past birth, sanchit, prarabdha, you align with the universal consciousness, then you're for the for finishing whatever is left, or to continue, you are born at certain place. Now, so Jyotish, as we understand, who has, for the Jyotish is given to the mankind for the benefit of the mankind. That's why otherwise Jyotish would have never been developed. Why Jyotish is there, right? It is developed by rishis. It is developed by, given by rishis. Although the creator is Shiva himself, I think it's Shiva himself. Because only who is beyond the time can tell about the time. Okay. So Mahakal has given it to Parvati, the Shakti, and the Shakti has given to the Rishis, and Rishis has given to all the humanity basically. So this is what I believe. And
what we say is that the light of Jyotish is what? The divine light, or the light of God, or there are so many. But this is true. The light, because without, if you are in dark and the light is not there, we can't see the path ahead. हम देख नहीं सकते आगे क्या है. मैं इसको कहता हूँ साइंस ऑफ टाइम. साइंस ऑफ टाइम. अगर किसी को अपने समय के बारे में अच्छे से ज्ञान है, तो वो जो है अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से प्लान कर सकता है, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी सकता है. मैं ये बोलता हूँ कि जिसको अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से पता है, वो वो अपनी, एटलीस्ट who knows the, their karma, whatever is written in the chart, then he can align the time as per his wish. And I say that he or she is king or queen of their life. बिकॉज वेन यू नो, तो उसकी लाइफ में मिजरी बहुत कम हो जाती है. देखिए, मिजरी हमेशा कहीं ना कहीं फॉर्म में तो होगी, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे फाइनेंस है, चाहे हेल्थ है, कहीं ना कहीं होती है. पर वो बहुत मिनिमम हो जाती है जब आपको अपना बर्थ चार्ट, जब आप रीड करके, स्पेशली एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर से. वाई आई एम सेइंग नाड़ी, किसने पूछा भी नाड़ी. तो देखिए, इसके दो रीजन है, दो चीजें हैं इसमें. एक तो ब्रांचेस है, ज्योतिष के बहुत सारी ब्रांचेस है. तो इसमें एक वैदिक ज्योतिष है जो कि ऋषि पराशर ने दिया. वो बहुत अच्छा ज्योतिष है, बहुत ही. हम यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी को कम और ज्यादा नहीं बोल रहे, पर जो सत्य है वो प्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, सत्य ये कि जो वैदिक ज्योतिष है वो बहुत अच्छा है, बहुत एग्जॉस्ट है. पर वो इतना एग्जॉस्ट है ना, और इतना बड़ा है कि उसको 10 साल, 15 साल, 20 साल, शायद एक जन्म भी पढ़े तो कम है. ठीक है, बहुत कम है. तो क्या है कि अगर आप वैदिक ज्योतिष पढ़ते हैं या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जो प्रैक्टिस करता है, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजर दुनिया में, चाहे वो 30 साल से कर रहा हो, 50 साल से कर रहा हो, चाहे कई जनरेशन सामने, तो ये देखा, वो बोलते हैं 50-60% से ज्यादा एक्यूरेसी नहीं आती. ओनली गेट एक्यूरेट अप टू 40, 50, 60%, नॉट मोर देन दैट. एंड दैट इज एस्ट्रोलॉजर्स, पीपल हु आर प्रैक्टिसिंग देयर वर्ड्स. एंड आई हैव चेक्ड विद मेनी मेनी एस्ट्रोलॉजर्स. सो दैट ऑलवेज बॉदर्ड मी कि यार 50-60% मतलब क्या है, वो तो कोई ज्यादा नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी जैसा हो गया, या मतलब बहुत मजा नहीं आया. तो फिर नाड़ी ज्योतिष की बात हुई. अब नाड़ी ज्योतिष में दो ब्रांचेस हैं. एक तो अगस्त ऋषि वाली, जहाँ थंब इंप्रेशन देख के आपको पास बहुत अच्छा पता लग जाता है 100%, पर फ्यूचर उसमें भी 60-70% से ज्यादा नहीं पता, 60-65%. फिर एक है अगस्त ऋषि के बाद है भृगु ऋषि की लीनिएज. वहां पर बहुत सारी हैं, भृगुनंदी नाड़ी है, चंद्रिका नाड़ी है, ध्रुव नाड़ी है, बहुत सारी नाड़ियां हैं, बहुत सारी नाड़ी के वर्जन है. पर एक यूनिक वर्जन है, उसको बोलते हैं नक्षत्र नाड़ी. जैसे कोई भी आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी शरीर की नब्ज देखता है, ही सीज हिज पल्स एंड टेल यू कि भाई आपके शरीर में क्या क्या बीमारियां हैं, क्या आपको प्रॉब्लम आने वाली है, सब बताता है. वैसे भी नक्षत्र ज्यादा नाड़ी ऑफ जोडियक, नक्षत्रों को देख के आदमी सब कुछ जान सकता है, सब कुछ बता सकता है. बट हमारे वैदिक ज्योतिष में नक्षत्रों का स्थान बहुत लिमिटेड है. इट्स वेरी लेस वी टॉक अबाउट नक्षत्र इन वैदिक ज्योतिष. मून का नक्षत्र है, लग्न का नक्षत्र है, ये बोलिए बस, उससे ज्यादा नहीं. नाड़ी नक्षत्र ज्योतिष में जो प्रैक्टिस करता हूँ, ये मिनिमम एक्यूरेसी 90% जाती है, मिनिमम एक्यूरेसी. ठीक है, और मिनिमम एक्यूरेसी 90% जाती है. और आप समझ लीजिए कि अगर आप इसको आगे बढ़ाते हैं, अच्छे से सीखते हैं इसको, तो आप 90% एंड अबव ही जाते हैं. ठीक है, ये नाड़ी ज्योतिष इतना पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते. इट्स सो पावरफुल. व्हाई इट इज पावरफुल? नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई नाड़ी ज्योतिष? बिकॉज क्योंकि जब हम वैदिक ज्योतिष सीखते हैं तो उसमें प्लैनेट, हाउसेज, राशि, एस्पेक्ट, यही सब बताते हैं. इंडिविजुअल चार्ट पे चले जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा डिग्रीज की बात करते हैं. बस ये लेवल 1 मैं बोलता हूँ नाड़ी ज्योतिष में. ठीक है, उसके बाद लेवल 2 आता है नक्षत्र, सब प्लैनेट्स के नक्षत्र क्या है, फिर नक्षत्र के स्वामी क्या है.
जब हम तीनों को कैलकुलेट करते हैं तो रिजल्ट पता लगता है, भाई इसकी शादी होगी नहीं होगी, इसको जॉब लगेगी नहीं, इसका फाइनेंस कैसा होगा, इसका करियर कैसा होगा, तब पता लगता है। सिर्फ इवेलुएटिंग ओनली, जस्ट चेकिंग ओनली प्लैनेट एंड एस्पेक्ट एंड हाउसेस, नहीं पता। क्योंकि अगर प्लैनेट, सपोज कर देखो बताता हूँ आपको कि 3 लेवल है समझ लीजिए। अब प्लैनेट जो सबसे वीक लेवल है, अगर हाइपोथेटिकल माने तो प्लैनेट लेवल 1 पे है, नक्षत्र की पावर 2 है, और नक्षत्र लॉर्ड यानी उसकी पावर 3 है। तो अगर हम सिर्फ लेवल 1 पे, पावर 1 पे डिसाइड करेंगे, तो पावर 2 ने मना कर दिया, पावर 3 ने मना कर दिया, तो खत्म हो गया ना। मतलब क्या हुआ कि नक्षत्र जो है, सबसे नक्षत्र का स्वामी सबसे स्ट्रांग होता है, फिर नक्षत्र होता है, और प्लैनेट सबसे वीक होता है। तो इफ वी डू एनी प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन वीकेस्ट ऑफ द लिंक, देन हाउ द प्रिडिक्शन कैन बी एक्यूरेट। इसलिए 50-60% से ज्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्शन होती नहीं है कभी भी, बहुत मुश्किल है उसको एक्यूरेट करना। अच्छा अब क्या है, सपोज स्वामी किसी को जी कैन करियर या फाइनेंस देखना है, इफ स्वामी जी कैन somebody wants to know हाउ, मैसेज कर लीजिए, अभी म्यूट पे रहिए, मैसेज कर लीजिए, ठीक है। इफ somebody wants to know कि भाई जो है मेरा करियर फाइनेंस कैसा रहेगा, तो करियर फाइनेंस के लिए सेकंड हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस, ये कॉम्बिनेशन देखना होता है। अब कैसे देखना होता है, क्या देखना होता है, ये तो देखो आपको भाई जब कोर्स ज्वाइन करोगे तो समझ में आएगा, कुछ पढ़ोगे लिखोगे तो समझ में आएगा। पर 10th इज द स्टेटस एंड पोजीशन, 11th इज गेम। जब 10th और 11th का संगम होता है और 6 का संगम होता है, देन यू गॉट ए न्यू जॉब और यू गेट प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट हैपेंस। 10 एंड 11 का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है आपके चार्ट में, टू गेट नेम एंड फेम, 10th हाउस एंड 11th हाउस। बट क्या है, अब आप सोचेंगे कि कोई प्लेनेट 10th हाउस में बैठा है, उसका राशि कहीं मतलब वो कोई उसका कनेक्शन जो है 11th में बैठा है, ऐसा सोचेंगे। भाई देखो 10th और 11th जो है, एक लेवल पे आप देख पाएंगे प्लैनेट लेवल पे ही कि 10th कैसे कनेक्टेड, 11th कैसे कनेक्टेड है। बट नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी देखने के लिए आपको ये अलग सॉफ्टवेयर चाहिए, अलग दृष्टिकोण चाहिए। तो वो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ऐसे नहीं देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसकी कैलकुलेशन बड़ी कॉम्प्लेक्स है, शायद इसलिए वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ। लोग सिर्फ पत्री देख के तुरंत बता देते थे ये होगा, पर वो आधा ही सही होता था, कभी पूरा सही हुआ नहीं आज तक, ठीक है। What three are used? So first is planet, second is nakshatra, and third is nakshatra lord. So when we evaluate all three energies, I say energies, then you get what is the result. Whether the suppose somebody came to you कि भाई जॉब लगेगी नहीं लगेगी, शादी होगी नहीं होगी, तो इन तीनों को मिला के जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो क्वेस्ट मेरी तो बचपन से शुरू से ही रही, माय फादर वाज आल्सो एस्ट्रोलॉजर, कि भाई इसमें एक्यूरेसी क्यों इतनी कम है, या क्यों, क्या हम फुल्ली इसको एकदम एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मेजर इवेंट ऑफ द लाइफ तो आप एकदम बिल्कुल 90% एंड अबव से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट प्रेडिक्शन स्टूडेंट्स तो ये बोलते हैं कि 95-96% से अबव ही आती है, ठीक है। या इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड लीनिएज। तो आपको क्या करना है कि, मैं यहाँ पर किस लिए हूँ पर, मैं यहाँ पर हूँ आपको नाड़ी ज्योतिष के बारे में बताने के लिए कि आप नाड़ी ज्योतिष जो बहुत पावरफुल टूल है, ठीक है। आप अपना गाइडेंस तो लेंगे, इंडिविजुअली ले सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, वो तो एक अलग कहानी है। पर मेरा पर्पस आपको कंसल्टेशन देना नहीं है, मेरा पर्पस है उस विद्या को आप सीखें और आप लोगों को कंसल्टेशन दें जैसे मैं देता हूँ। मैं आज 70 से ज्यादा कंट्रीज में कंसल्टेशंस देता हूँ, लाखों क्लाइंट्स एड्रेस करता हूँ, एकदम गरीब से लेकर एकदम जो कहते हैं फुल रिच वेल्दी। तो मैं चाहता हूँ ऐसा आप लोग भी करें, क्योंकि आने वाले, समझ लीजिए कम से कम 10 से 15 साल, इन ऐसे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स की जरूरत है जो लोगों को सही गाइड कर सके। तो आप कुछ भी काम करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, होम मेकर हैं, आप कोई प्रोफेशन करते हैं, बिजनेस करते हैं, आप जरूर से इसको सीखें। देखिए पहले लाइफ में क्या होता था, पहले लोगों की लाइफ में इतना मिजरी नहीं होती थी। क्यों, क्यों मिजरी? क्योंकि हर गली में या हर घर में कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर होता था, घर नहीं तो दूसरे घर में, मतलब मोहल्ले गली में 2-3 तो एस्ट्रोलॉजर निकल आते थे।
और क्या था कि लोग कोई भी बात हुआ तो स्ट्रेस हुआ, कुछ भी, भाई जॉब नहीं मिल रही, शादी नहीं हो रही, जाके पूछ रहे, उन्हें बता दी इस टाइम पे होगा, तो एटलीस्ट स्ट्रेस ढीला हो, कम हो गया। ठीक है। और सही टाइम पता चल गया तो उस टाइम मेहनत की तो हो गया। अब गलत टाइम में मेहनत करते रहो, फ्रस्ट्रेट होते रहो, परेशानी हो गया, अरे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, अरे टाइम टाइम ही सही नहीं है तो कहाँ से होगा। ठीक है। तो पेशेंस रखें, मैं कर्म करने को मना नहीं करता, कर्म करो पर चिंता नहीं करो, होगा टाइम उस टाइम में। तो ऐसा आप एग्जैक्टली बता सकते हैं, यू कैन टेल द पर्सन एग्जैक्टली व्हेन थिंग्स विल हैपन। तो मेरी ये मुहिम है, गुरु के आशीर्वाद से, परमात्मा की कृपा से, उनका आदेश है, भाई सबको एस्ट्रोलॉजी सिखाओ। ठीक है। सबको एस्ट्रोलॉजी सिखाओ। तो मेरा बस एक ही है कि सारे को साथ नहीं, नक्षत्र नाड़ी मैं कहता हूँ सारी नाड़ियां सीखे। देखो किसने पूछा कि कोई और नाड़ी भी सीखेगा, कोई और नाड़ी की जरूरत ही नहीं है। इसके ऊपर ना सिर्फ भगवान ही समझ लीजिए, इसके ऊपर भगवान ही प्रिडिक्शन कर सकते हैं और कोई नहीं, जो कि सर्वे सर्वा है, इतनी एक्यूरेट है। तो इसको सीखने के बाद कोई और जाने सीखने की, हाँ आपने बहुत 10-50 चीजें सीखो, बीएनएन सिखाओ, ये सिखाओ, तो आपको भाई ये सीखने की जरूरत है। आपने दुनिया की सारी विद्या सीख ली, ये नहीं सीखा ना, तो आपको सीखने की जरूरत है। ये सीख ली तो आपको दुनिया की कोई विद्या सीखने की जरूरत नहीं है। दिस इज फाइनल, लास्ट डेस्टिनेशन है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और ऐसे कहता हूं तो मैं भाई खुले में कहता हूँ एकदम, कोई है तो चैलेंज करके दिखा दे मुझे, इसके ऊपर भी कोई विद्या है तो। लोग 90% ही नहीं पहुंच पाते, मैंने आज तक किसी एस्ट्रोलॉजर को नहीं देखा जो बोले 90, और जिसका प्रूफ हो, हमारे पास प्रूफ भी है, डेटा भी है, इतने सारे स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया में पढ़ा दिया, वो खुद लाइव टेस्टिमोनियल्स हैं। ठीक है। तो प्रूफ ही प्रूफ है, रिसर्च है इतनी सारी। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है, व्हेन यू लर्न नाड़ी नक्षत्र, नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड। इसके ऊपर सिर्फ भगवान है, आप समझ लीजिए। तो मेरा पर्पस है आप सब लोगों को सिखाना, ये बताना कि आप लोग सीखें, करें। अच्छा, क्या है? तो सीखने से क्या फायदा होगा? देखो सीखने से 5-6 फायदे हैं। क्या? आप एक अपने आप को एज ए एस्ट्रोलॉजर स्टैब्लिश कर सकते हैं, लोग आपके पास आते हैं। देखो अभी 2 मिनट पहले मैसेज आया, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजूंगा। वो लड़की हमेशा मना करती थी कि भाई मैं तो नहीं सीखूंगा, मैं तो नहीं सीखूंगी, मेरे को तो करना आता नहीं, मैं तो इंटरेस्ट की वजह से बस थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। मैंने कहा तुम कर लोगी और तुम अच्छा करोगी, बढ़िया करोगी। 6 महीने का कोर्स किया, अभी कोर्स खत्म हुआ, मुश्किल से 1 महीना हुआ है, आज मैसेज भेजा है, 20 लोगों को उसने कंसल्ट किया, गाइड किया, और थैंक यू बोल रही थी कि आपने मुझे इतना अनेबल किया। 20 लोगों को। ठीक है। एक दिन में, 1-2 दिन में बेसिकली, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, समझे ना। किसी को भी करना, ये सीखना कोई बड़ी चीज नहीं है, हर तरह के लोग सीख सकते हैं, जिसको 1 से लेकर 9 तक गिनती आती है वो सीख सकता है। ठीक है। तो आप जरूर सीखें, मैं कहता हूँ। ठीक है। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस बारे में तो मेरा फोन नंबर है, मैं लिख देता हूँ इसमें, 9810227498। उस पे मेरे को मैसेज कर दें, यू विल गेट ए लिंक, वहां पर कोर्स का लिंक वगैरह सब पता चल जाएगा आपको। ठीक है। ठीक है। तो देखो ज्योतिष में, अच्छा इसमें क्या करना है, अब क्या होगा इसमें? देखो सिखाने में 6 महीने का जर्नी होता है, 6 से 7 महीना कह लीजिए। ठीक है। करियर में बहुत स्ट्रगल है, मैं आपको रेमेडी बताया था अनूप जी, आपने 1-2 बार मैसेज किया। देखो मैं मिजरी किससे होती है लाइफ में? 6, 8 और 12। 6 होता है डिजीज डेट लिटिगेशन, 8 होता है ऑब्स्टिकल, 12 होता है लॉसेस। 6 सेवा भी होती है, 8 योगा प्राणायाम पद्म साधना भी होता है, 12 एडवांस कोर्स भी होता है। भाई मैं तो आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग फॉलो करता हूँ, और बेसिकली ध्यान और गुरु को फॉलो करता हूँ, अगर समझा जाए तो। ठीक है। तो ध्यान करने से कर्म करते हैं, पर रोज आप करिएगा आपसे हो नहीं पाएगा, तो बेटर है आप सुदर्शन क्रिया एक है ऑटोलिंक का हैप्पीनेस प्रोग्राम, उसको करिए। उसके बाद एक साइलेंस प्रोग्राम है, 1 महीने बाद उसको कर लीजिए। लॉस एनर्जी 12 हाउसेस, लॉस एनर्जी, साइलेंस प्रोग्राम करिएगा तो आपकी लॉस एनर्जी कम होगी, तो आपके लाइफ में लॉसेस है, खर्चे, आउटफाउट, जो भी तरह के हेल्थ लॉस, वेल्थ लॉस, वो कम हो जाएगा। 8 पद्म साधना है, यूट्यूब में सर्च कर लिए पद्म साधना, रोज पद्म साधना करिए, देखिए कैसे ऑब्स्टिकल बिल्कुल मिट्टी की तरह ढह जाएंगे। ठीक है। पानी की तरह बह जाएंगे, ऑब्स्टिकल कम हो जाएंगे। और 6 होती सेवा, डिजीज डेट लिटिगेशन, तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, कैसी भी सेवा कर सकते हैं। धन की प्रॉब्लम है तो धन से सेवा करिए। देखिए यूनिवर्स का नियम है, वॉट एवर यू गिव इट विल कम बैक टू यू मल्टीप्लाइंग मेनी मेनी टाइम्स। पैसे की कमी है तो किसी आपसे जो कम पैसे वाला है, जो कम नीडी है, उसकी हेल्प करिए।
शरीर में प्रॉब्लम है तो शरीर से जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, मंदिर में जाइए, सेवा करिए। मन में प्रॉब्लम, मन दुखी रहता है तो किसी को मन को एलिवेट करिए, किसी को मन को खुश रखिए, तो वो भी सेवा है। मन की सेवा आज के टाइम में सबसे बड़ी है। मन की सेवा आज के टाइम में सबसे बड़ी है। तो सेवा करिए। सेवा करेंगे तो तन मन धन से तो सब बढ़िया हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी में करियर की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम्स का 6 8 12 ये कम करिए। सेवा करिए, पद्म साधना करिए और साइलेंस कोर्स या ध्यान जिसे बोलते हैं, 2 3 दिन एकदम ध्यान में रहे। तो वो अकेले करना मुश्किल होता है, किसी कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। कोई भी कोर्स हो सकता है जिसको आप चाहें, आप कहीं किसी और धर्म के, किसी और चीज के, आपके यहाँ अगर कुछ ऐसा होता है तो वो कर लीजिए। मेरे को जो वैलिड है, पता है, जो एकदम प्रूव्ड है और जिसके मैंने बेनिफिट्स पूरी दुनिया में देखे हैं, हजारों लाखों में देखा, मतलब हजारों हजारों पत्रियां में देखी हैं कि जब हमने रिकमेंड किया, उन्होंने किया तो उनको फायदा हुआ है। ठीक है। तो हैप्पीनेस प्रोग्राम है, गूगल कर लीजिएगा, करिए। केतु, मार्स एंड सन इन द फर्स्ट हाउस। अरे भैया, ये तो बड़ा तुमने है ना ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जिसका कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है। अब लोग इसको क्या बोलेंगे, केतु की प्रॉपर्टी बता देंगे, सन की प्रॉपर्टी बता देंगे, मार्स की बता देंगे। मार्स अग्नि वाला हो गया, केतु मिस्टीरियस हो गया, और सन जो है वैसे ही भाई तेज है। तो अब ये चीजें होंगी, ये पर ये सब कैलकुलेशन गलत होती है जब तक आप नक्षत्र को नहीं देखेंगे, नक्षत्र के स्वामी को नहीं देखेंगे। यही तो गलत तरीका है। ठीक है। यही गलत तरीका है। अच्छा, टीच संस्कृत। हाँ तो अर्चना, मेरे को पिंग करना, तुम संस्कृत टीच करती हो तो बताना, हम करेंगे कुछ। ठीक है, मेरे को पिंग करना व्हाट्सएप में, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरा। ठीक है। तो क्या है कि मैं आपको ये बोलूंगा कि मैं आपको ये बोलूंगा कि सिर्फ एक प्लेनेट कहाँ बैठा है, फर्स्ट हाउस में बैठा है, 10th हाउस में बैठा है, इस पे आप प्रिडिक्शन चाहोगे, आप प्रिडिक्शन करोगे, गलत ही होनी है, लिख लीजिए। 4 बातें सही होंगी, 6 बातें गलत होंगी। कभी भी ऐसे प्रेडिक्शन नहीं करते, उसका नक्षत्र को देखते हैं, उसके नक्षत्र स्वामी को देखते हैं। फिर हमारी टाइमलाइन क्या है, टाइमलाइन क्या है, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतदशा। एवरीथिंग लाइफ डिपेंड्स ऑन महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत। महादशा टेल्स यू बिगर पिक्चर, अंतर और प्रत्यंतर बताती है अभी क्या हो रहा है लाइफ में। ठीक है। तो जैसा वह नक्षत्र, नक्षत्र के स्वामी की एनर्जी होगी, वैसा ही लाइफ में घटित होगा, चाहे वो दुख हो चाहे सुख हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है। अच्छा, बाकी मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं, अंदर का भी चाहिए बाहर का भी चाहिए, तो एक बात समझ लीजिए, ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान करना, जप करना, ये बहुत जरूरी है, इसके बिना पार नहीं पड़ेगा। ठीक है। और शरीर को स्वस्थ करना जरूरी है, क्योंकि ये शरीर ही सबसे बड़ा टेम्पल है, और कोई नहीं है। ये मंदिर, ये मानव शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है, यही मंदिर, इसी मसीह से जाएगा। ये अगर ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होगा। ये अगर ठीक है तो ही साधना होगी, तो ही अंदर से जाइएगा। और सब कुछ आपके अंदर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, मंदिर अंदर जाइए, मैं मना नहीं करता हूँ, पर ये खुद ही मानव शरीर आपका जो है ये मंदिर है। इसकी केयर करिए, हेल्दी इसको हेल्दी और स्ट्रांग बनाइए। क्योंकि देखो, वैसे ही लोग बोलते हैं अरे बुढ़ापे में ध्यान कर लेंगे, साधना कर लेंगे, बुढ़ापे में कुछ नहीं होने वाला। 50 60 हुए, शरीर ने काम करना बंद किया, कुछ नहीं होने लगा, ये जन्म जन्म जो है व्यर्थ चला गया। ठीक है। क्या बोला है, संतों ने क्या बोला है, दिवस गवाई खाए के, रात गवाई सोए के, दिवस गवाई खाए। रात गवाई सोए के, दिवस गवाई खाए, हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। रात भर आप सोए, दिन भर आपने खाया, हीरा जन्म अनमोल था, भगवान को पाने के लिए था, और वो चला गया, वेस्ट हो गया। ठीक है। किस दिन आपको रहस्य समझाएंगे, मनुष्य की जब आत्मा निकलती है तो कहाँ कहाँ जाता है, क्या क्या सारा बवंडर होता है। वो कभी और सेशन करेंगे, आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे तो। ठीक है। ये बहुत बड़ा जाल है, कोई अपने जाल से, इस मृत्यु लोक क्या है, बहुत बड़ा जाल है। और इस जाल से निकलने के लिए आपको जप और नाम का सहारा ही मिल लेना पड़ेगा। नाम जप सहारा लेंगे, ध्यान करेंगे, तभी निकल पाएंगे, अदरवाइज इससे कोई निकलने वाला नहीं है। बहुत बड़ा मैट्रिक्स है यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या है, कोई भी चाहता नहीं कि कोई राजा चाहता है कि उसकी प्रजा उसको छोड़ के जाए, तो यहाँ सब जो है, सब जो है, आप सब प्रजा हैं।
और जो इनको चलाने वाले हैं इस दुनिया को, वो सब राजा हैं। कोई नहीं चाहता कि आप निकल के मोक्ष मिल जाए आपको। अब आप बोलेंगे अच्छा धन चाहिए, धन ले लो, अच्छा अप्सरा चाहिए, बीवी चाहिए सुंदर, ये ले लो, पुत्र चाहिए, पुत्र ले लो, पर रहो यहीं पर ही, ये रहो यहीं पर ही, इसको छोड़ के मत जाओ। और जैसे ही छोड़ने की सोचोगे, 84 को निकलने की सोचोगे, तो वो फिर कुछ ना कुछ अड़चन लड़ा देंगे, कुछ प्रलोभन दे देंगे। तो भाई ये बहुत ज्ञान की बात है कि आपको ये समझना है कि सिर्फ आप यहाँ रिश्ते निभाने खाने पीने नहीं आए हो, आप इस मानव जीवन को सफल बनाने आए हो। और ज्योतिष उसमें मैं कहता हूँ बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब आपको अपने कर्मा पता लग जाते हैं ना ज्योतिष में, सबसे पहले तो आपको बेनिफिट होता है कि आप फिर, कि भाई आपको अपनी चीजें पता लग गई और आप उस चीजों को फिर मैनेज कर लेते हो, पास भी जान लेते हो, फ्यूचर भी जान लेते हो, और आप एक थॉटफुली प्लान कर लेते हो कि मुझे क्या क्या करना है। फिर आपके बच्चों, आपके बच्चों से, आपकी वाइफ से सब रिलेशनशिप बहुत पता लग जाता है, अगर ये खराब है तो क्यों खराब है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो ज्योतिष तो सबसे पहले आपको हेल्प करता है, आपकी फैमिली को, आपके दोस्त फ्रेंड। फिर उसको एज ए प्रोफेशन बनाना है, प्रोफेशन भी बना सकते हो, सेवा के काम भी कर सकते हो। नाम शोहरत तो खूब हो ही जाता है जो ज्योतिष में आता है। मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मैं बोलता हूँ सब लोग सीखिए। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वर्ल्ड वेबसाइट है, वहां जाके रजिस्टर कर लीजिए, अभी नवरात्रि में शुरू होगा कोर्स। फीस इसकी क्या है? फीस इसकी क्या है? फीस तो इसकी बहुत कम है, तो कहता हूँ 5 लाख रुपए भी कम है। भाई एमबीए करने जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कितना पैसा लगता है, 20 20 50 50 लाख लगता है, उसके बाद ही 50,000 की जॉब नहीं लगती। ठीक है, तो क्या ये करेंगे तो भाई पैसे का तो कुछ है ही नहीं, पैसा तो पता नहीं कितना कमा लेंगे, पर आप अच्छा करेंगे तो लूट खसोट नहीं करना है। क्या मैं बोलता हूँ, ज्योतिष से जो भी कमाए उसमें 10% 20% जरूर दान करिए। सब खा जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, फॉर द कोर्स मैं इसमें डाल देता हूँ, मैं इसमें लिंक डालता हूँ, अब वहां जाके रजिस्टर करिए। इसकी कीमत तो कुछ भी नहीं है, जो ये आपको देता है ना उसके हिसाब से इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं, इट्स लाइक कॉस्टिंग 1,18,000, पर ये नथिंग आई टेल यू, क्योंकि हम इस कोर्स में 6 से 7 महीना कोर्स करते हैं, इसमें कम से कम नहीं तो 400 500 चार्ट डिस्कस करते हैं। आप लोग को एक्सपर्ट बना के निकालता हूँ मैं यहाँ से, ये समझ लीजिए। जब यहाँ से जाते हैं तो आप एक्सपर्ट बन के निकलते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि आप जरूर से जो है ना, इसको सीखिए, इसको मिस मत करिए। ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। और किसी के पास फाइनेंस का चैलेंज है, कुछ चैलेंज है, भाई क्रेडिट कार्ड पे आप दे दो और ईएमआई बनवा लो, वो भी सुविधा है अपने पास। यू कैन पे ऑन द क्रेडिट कार्ड एंड देन यू कैन गेट द ईएमआई। आजकल तो ये सब बहुत ईजी है आज तक तो। ठीक है, तो ये सब आप कर सकते हैं। naadistologyworld.com/courses मैंने चैट पे डाल दिया है। एनी डेमो ऑफ सेशन, देखो उसमें ना कुछ डेमो देने वाला है नहीं कुछ। अब डेमो तो मेरे स्टूडेंट ही देंगे आपको, भाई जाके पूछ लीजिए कैसा सिखाया मान हमने आपको। ठीक है, उसमें ऐसा डेमो का कुछ नहीं है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। उसमें क्या है, 3 4 क्लास आपको मेरे क्योंकि 5 मिनट में अगर ऐसा कुछ होता ना तो मैं सिखा देता आपको, मैं डेमो भी दे देता। अभी तो मैं समझा सकता हूँ आपको कि हम इसमें प्लैनेट, नक्षत्र, नक्षत्र के स्वामी देखते हैं और तब करते हैं। डेमो से ऐसे इतना पार पड़ेगा नहीं एक्चुअली, दैट्स वाई। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको एस्ट्रोलॉजर बनना है, आपको बहुत टाइम से मन है कि मैं एस्ट्रोलॉजर बनूं, या मैं बहुत टाइम से मन है कि मैं अपने बारे में जानूं, अपने भविष्य के जानूं, अपनी फैमिली, तो इसको सीख लीजिए। ये आपकी एक तरह से समझ लीजिए कि हमेशा के लिए आपकी एक विद्या हो गई, और आप बहुत अच्छा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। शायद एक आध दो हमारे स्टूडेंट भी ज्वाइन किए हैं क्या अभी, मेरे को ऐसा लगता है। आप खुद उनसे पूछ लीजिए, खुद ही बता देंगे कि भाई कैसा रहा उनका जर्नी 6 8 महीने का। तो आप समझ लीजिए कि इससे बढ़िया जगह आपको मिलेगी नहीं। लोग 10 10 साल 20 20 साल घूम के आते हैं इधर उधर से, पर उनको प्रिडिक्शन करना नहीं आता। मेरे साथ 6 महीने रहते हैं, एकदम बढ़िया प्रिडिक्शन सीख लेते हैं 6 7 महीने में। और हमारे स्टूडेंट तो आईएएस भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, गूगल में भी काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में भी करते हैं, सब जगह के हैं। मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सब तरह के स्टूडेंट्स हैं। तो आप जरूर सीखिए, ऐसा अच्छा मौका मिलेगा नहीं। बाकी आपने जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए। और कोई है क्या हमारे स्टूडेंट, हम देखते हैं भाई कोई हमारा करा हुआ है क्या स्टूडेंट अभी यहाँ पर इस ग्रुप में। नागेंद्र, आप हो क्या?
जी पंडित जी, मैं यहाँ हूँ, आज हूँ। अरे जरा इनको बताइए भाई, सब लोगों को आपका टेस्टिमोनियल सुन लेंगे ये लोग, क्या है, कैसा सीखा, कैसा जर्नी रहा, आया नहीं आया, जो है चलो, बताइए, शेयर करिए। मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए भाई, मैं भी आपको स्पॉटलाइट करता हूँ, एक बार रुकिए जरा। हम्म, क्या है कि आप भाई देखो, नागेंद्र जी अपने आप ही ज्वाइन किए, मैंने नहीं बोला इनको ज्वाइन करने को। ठीक है। मैं अभी आया बाहर से। आपने देखा होगा तो मैंने कई देखा बार तो। कि आपका एक जूम लिंक चल रहा है। हाँ तो ये आ गए तो अच्छा है, चलो अच्छी बात है, आप कम से कम, और इनका कोर्स अभी भी खत्म हुआ है। अभी अभी खत्म। प्रियंका ने मेरे को बोला, उसने 20 लोगों को कंसल्ट किया, कि अच्छा। किसी उसमें गई थी, तो मैंने कहा देखो शुरू हो गया। ठीक है। तो अब नागेंद्र जी से खुद ही सुन लीजिए, आप क्या बोल रहे हैं, बताइए नागेंद्र जी। तो जय गुरुदेव। मेरी भी यात्रा काफ़ी लंबी है एस्ट्रोलॉजी सीखने की। और मैंने अपना ग्रेजुएशन, मैं वैसे तो मैं प्रिंसिपल साइंटिस्ट हूँ फार्मा कंपनी सैंडोज में। डायरेक्टर हूँ अभी। एक सेकंड। हम्म। डायरेक्टर हूँ मैं हैदराबाद में। और आश्रम का आश्रम की जर्नी है। और फार्मेसी पढ़ने से पहले मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखना स्टार्ट किया। 2001 में मैंने पहली बार किसी से प्रश्न कुंडली सीखी थी, लेकिन तब कंप्यूटर नहीं होता था, कैलकुलेशन और ये सारी चीज याद रखना दिमाग में। उसको डेली का जी पंचांग देखते थे हम। डेली का पंचांग देखते थे कि आज सुबह का पंचांग ये है, तो जब क्वेश्चन पूछा गया है तो उस वक्त उसको घुमाते थे। और इट वाज वेरी वेरी टफ, एंड देन आई गॉट इनटू द स्टडीज, बी फॉर्म, एम फॉर्म, पीएचडी, एंड देन जॉब। And I lost everything. And Dr. Narendra Vikram was the doctor by profession in Kanpur, and he taught me all these things. So he's the first guru of mine, and then journey started. रास्ते में बहुत सारी चीज मैंने नागपुर में सीखा, इंदौर में था तो इंदौर में सीखा, नासिक में सीखा। करते कराते बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन जो प्रिडिक्शन का जो एक प्रिसीजन आता है, सी आई एम अ साइंटिस्ट, तो मुझे लगता था यार प्रिसीजन होना चाहिए। मैंने आज एक चार्ट देखा, आज मैंने कुछ बताया, कल मुझे दूसरा वो आदमी यदि 6 महीने बाद आता है, तो मेरे मुंह से वही चीज निकलनी चाहिए। ठीक है। तो मेरी लॉजिक्स बहुत क्लियर होनी चाहिए, हमारी डेप्थ बहुत क्लियर होनी चाहिए। तो पंडित जी जो, जब हमको पंडित जी के बारे में पता चला, हमने इनके पास जाकर सीखा, तो हमें वहां से क्या मिला कि भाई ग्रह जो है जिस राशि में बैठा है वो तो अपना फल देगा, लेकिन साथ में किस नक्षत्र में है, उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है, उसके सब लॉर्ड कौन है। जब हम इस डेप्थ में जाके उस प्रोटेक्शन को करते हैं, और वो इसको हम प्लैनेट स्क्रिप्ट बोलते हैं। तो जब प्लैनेट स्क्रिप्ट पूरी क्लियर होती है, तब हमारी प्रिडिक्शन जो है एक्यूरेट होने लगती है। और उसको सिखाने और समझाने का तरीका पंडित जी का तो बहुत ही नायाब है। हम लोगों ने खुद भी सीखा है। तो मतलब पंडित जी को पता है कि मैं खुद सिम्बा एस्ट्रोलॉजी मेरा इंस्टीट्यूट है, जिसमें मैं लोगों को कंसल्ट करता हूँ, और मैं बहुत सालों से कंसल्ट कर रहा हूँ। बट प्रिडिक्शन की जो डेप्थ थी, मैंने अपनी टेस्टमोनी लिख के भी दी है सर को। यही जी लिख जी के जी दिया, बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली यही चीज लिख के दिया है मैंने। कोई ऐसी जी चीज नहीं लिख के दी जो मैंने फील नहीं किया। दूसरों ने जो फील किया दूसरों ने लिख के दिया, लेकिन मैंने जी यही लिख जी के दिया। मेरी प्रिडिक्शन की जो एक्यूरेसी थी वो बढ़ गई, मेरी डेप्थ बढ़ गई, और रिपीटेबिलिटी आ गई। किसी भी बिल्कुल। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में भी हम रिपीटेबिलिटी देखते हैं कि यस हमारा यस। एक्सपेरिमेंट सेटअप लगाने के बाद सेम रिजल्ट आ रहा है क्या। यदि बार हम्म। बार आ रहा है तो अच्छा है। तो मेरा वो तो यही फॉर्मूला। है कि ये जो विद्या है बहुत ही अच्छी है, और इसमें जो डेप्थ आती है लोगों की, और जो आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी आती है, बहुत ही अच्छी आती है। आपको जरूर एक बार सोचना चाहिए इस ज्ञान को लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी नाइस वेरी नाइस, थैंक यू डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र बहुत अच्छा सीखा और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई एम श्योर ही विल बी हेल्पिंग मैनी 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 पीपल इन हिज लाइफ। पूरी जो है, हमारे सारे स्टूडेंट इतने सुंदर, इतने बढ़िया हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है। तो डॉक्टर नागेंद्र बहुत अच्छा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग डॉक्टर नागेंद्र, आपने आके हाँ, इतना मैं भी अच्छा घर अपना। से बाहर था, अभी मैं आया। मैंने कहा क्लास, हाँ हमारा आपने क्लास का शेयर टाइमिंग होता किया, है आई ये। एम सो हैप्पी। हमारा हाँ क्लास का आपने टाइमिंग शेयर होता है, किया, हमारी आदत है। क्लास का टाइमिंग तो यही होता था, बिल्कुल बिल्कुल। अभी थोड़ा मेरा चेंज आदत थी करेंगे तो इसको, फिर फॉलो अप जाके। बनाएंगे इसको, हम जी। करेंगे तो। तो देखिए, ये आप समझ लीजिए कि ये तो आपको लाइव टेस्टिमोनियल मिल गया, ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आप सीख के अपनी लाइफ में एक बहुत अच्छा जीपीएस आपके साथ रहेगा, जो कि आपको पता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है लाइफ में, तो वो आप कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है। आप बोल रहे कैन वी टीच समवन आफ्टर लर्निंग। देखो तुरंत तो नहीं, तुरंत नहीं कर पाओगे, आपको डेप्थ होनी चाहिए ना, तब तक आप 1,000 500 2,000 चार्ट ना कर लो, पता ही नहीं चलेगा आप, समझे ना। तो भाई अब वही बात है, जिसको खुद रास्ता नहीं पता, जो खुद एक्सप्लोर कर रहा है, वो दूसरों को रास्ता कैसे दिखाएगा।
तो पहले आप खुद सीखें, लोगों को कंसल्ट करें। देखो मैंने भी पढ़ाना शुरू किया तो मैंने पहले हज़ारों लोगों को कंसल्ट किया, उसके बाद पढ़ाना शुरू किया है। क्योंकि डेप्थ आती है। जब आप कंसल्ट करोगे ना हज़ारों लोगों को तो डेप्थ आएगी, तब आप समझ में आएगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि यू ऑन द वे यू एक्सप्लोर मेनी न्यू सूत्रास। देखो मैंने बहुत कुछ सीखा किससे? कंसल्टेशन करके। मैंने कहीं किसी टीचर ने नहीं सिखाया। भाई किसी ने सिखाया तो बेसिक गाइडलाइन दे दी, भाई ऐसे-ऐसे होता है। पर जब मैंने कंसल्ट किया तो आई फॉर्मुलेट मेनी न्यू सूत्रास जो मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, जो कहीं और ना किताब में मिलेंगे ना कहीं और मिलेंगे। ठीक है? तो ऐसा है, तो ज़रूर से सीखिए और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आपने सुना ही अभी। हाँ, आपने बात की इंस्टॉलमेंट की, मैंने कहा था ना देखो आप उसमें साइट पे है कार्ड से पेमेंट करने का है और भाई कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं आप, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। आपको इसकी जो अगर 6 महीने, साल भर की कोई अगर सपोज़ करो कुछ इंटरेस्ट आपका एडिशनल होता है 1500, 2000 जो भी होता है, वो हम आपको वेव ऑफ कर देंगे, ये हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कार्ड पे बनवा लें अपना, कार्ड पे कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं और उसमें ईएमआई बन सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आजकल ये सब फैसिलिटी बहुत ऑनलाइन ही अवेलेबल है। ठीक है, जब आप पेमेंट कर रहे हो तभी वो पूछता है भाई ईएमआई में देना है, डायरेक्ट देना है, कैसे देना है? जया जी कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं सबको बताने आई हूँ भैया कि सब कर लें। हाँ, क्या बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सबको करना चाहिए, सोचना नहीं हाँ, चाहिए एक बारी भी। बिल्कुल, बिल्कुल। जया भी बताएँ, बिल्कुल बताएँ, बिल्कुल बताएँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल ये तो मैजिकल है, मैजिकल, मैजिकल। रियली है ना? मैजिकल है। है ना? भैया की प्रिडिक्शंस बिल्कुल एक्यूरेट है। अरे ये सब तो बातें, सब। मतलब इट इज 100%, 200%। थैंक यू आप जया लोग जी, मन में कोई शंका मत रखो, शुरू करने से पहले सारी शंका एक साइड कर दो। मैं थैंक भैया यू। का ये वाला सेशन ऐसे ही ज्वाइन करती ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें भी कुछ ना कुछ मिलता है, इस सेशन में भी। सब कृपा है, सब कृपा है। देखो अभी गुरुदेव हम्म, से बात हुई तो मैं अभी यहाँ से मैं अटेंड करके आया, मैं आपको बताता हूँ कुछ अच्छी चीजें। ठीक है, हम्म। गुरुदेव ने क्या बोला? बोला कि भाई आप जो दिल्ली में क्यों। हो भैया? दिल्ली में हो हाँ, इस समय? हाँ, दिल्ली में हूँ, दिल्ली में अच्छा अभी हुआ अच्छा, था, ओके अभी वहीं से आ रहा हूँ। तो ओके गुरुदेव ओके। ने क्या बोला, जब क्योस आता है, क्योस के बाद ही ब्लिस होता है। ठीक है, जब लाइफ में बहुत क्योस हो जाता है, उसके बाद ही हम ब्लिस का अनुभव कर सकते हैं, बिना क्योस के हम ब्लिस भी नहीं पता चलेगा। भाई शांति का अनुभव कब होता है? जब शोर होता है, राइट? तो ऐसे ही लाइफ में अगर क्योस है आपकी लाइफ में, तो बस ये समझ लीजिए कि आज नहीं तो कल ये क्योस से एक ब्लिस निकलेगा। पर उसके लिए क्या करना है? जो गुरु ने बताया मार्ग, उस मार्ग को फॉलो करना है। ठीक है, और ज्योतिष भी एक ऐसा मार्ग है, समझ लीजिए, भी ऑब्वियसली हमें गुरु ने ही बताया है। ज्योतिष भी ऐसा मार्ग है जिससे आप अपनी लाइफ में ब्लिस को पा सकते हैं। सपोज एक एग्जांपल देता हूँ, हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत गड़बड़ है, हस्बैंड सोच रहा है अरे मैं छोड़ूं, या वाइफ सोच रही है मैं छोड़ूं, दुखी हो गई, 10 साल से झेलते झेलते हो गया, अब तो मैं चाहती हूँ अलग ही हो जाए इस आदमी से। और चार्ट देखते हैं, बताया अरे समय चेंज होने वाला है, अभी 6 महीने बाद जो है चीजें बिल्कुल चेंज हो जाएंगी, और ये थोड़े उपाय कर ले तो दोनों की चीजें ठीक हो सकती हैं। हस्बैंड वाइफ ने किया उपाय, कुछ आए गलती से मेरे पास आ गए या भगवान की कृपा से मेरे पास आ गए, बोला मैंने किया, और 6 महीने बाद जो कोर्स जो चीज एकदम डाइवोर्स की एज भी थी, ऐसे टेस्टिमोनियल है, ऐसी सही लाइव केसेस है, हाइपोथेटिकल नहीं बना रहा मैं, लाइव केसेस है, यूएस का केस है। मैंने बोला भाई इस टाइम तक आ जाएगा तुम्हारा हस्बैंड, और हस्बैंड छोड़ के भी चला गया घर। ठीक है, मैंने बोला चिंता मत करो, क्या करें भाई, मैं अब तो डाइवोर्स दे देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं अभी कुछ मत दो, आगे टाइम तुम्हारा ठीक है, जो होल्ड करो, 31 दिसंबर तक होल्ड करो। आप समझ लीजिए कि 31 दिसंबर की शाम को ही वो आ गया, बोलता है लेट्स स्टार्ट अगेन, हम लोग आज से करेंगे। बच गया बहन की लाइफ, अभी भी मेरे को बात करते हैं, कंसल्ट करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जहाँ लोगों की लाइफ बच जाती है। तो आप लोगों के, भाई डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर हैव टू हैव एस्ट्रोलॉजर के पास कई प्रोफेशंस की क्वालिटी होती है। जैसे कि उसके पास वो एक डॉक्टर जो एस्ट्रोलॉजर, वो एक साइकेट्रिस्ट भी होता है, साइकोलॉजिस्ट भी होता है। ठीक है, डॉक्टर की तरह उसको सुनना पड़ता है पेशेंट की बात, फिर कोई रेमेडी देनी होती है। वो एक समझ लीजिए कि एक हीलर भी है, एक गुरु भी है, एक गाइड भी है। तो एक एस्ट्रोलॉजर के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आ जाती हैं और स्वतः ही आ जाती हैं। ठीक है, आप मत सोचिए कि अरे मेरे अंदर तो ये नहीं है, ये नहीं है। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है कि ये जरूर होना चाहिए मन में कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी है। अगर ये आपके मन में इंटेंशन रहे कि मुझे दूसरों की हेल्प करनी है, तो आपके अंदर बाकी सब क्वालिटीज अपने आप उदय हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि भाई लाइफ में खुश रहिए, ये जीवन बहुत छोटा है।
आने वाले 5 साल बहुत उथल पुथल के, स्पेशली 26 देख लीजिएगा, 27 देख लीजिएगा, 28 देख लीजिएगा। आपने सोचा नहीं होगा कितनी ज्यादा उथल पुथल है। तो इतनी उथल पुथल के चक्कर में क्या होगा कि लोगों को प्रॉब्लम्स बहुत होने वाली हैं, और फिर लोग ढूंढने वाले हैं कि भाई कोई एस्ट्रोलॉजर मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए। अब अच्छे नहीं मिलेंगे तो क्या, इस विश्वास से विश्वास फिर डगमगाता है। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप जैसे अगर अच्छे एस्ट्रोलॉजर आएंगे तो लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। पैसे तो मिल ही जाएंगे, पैसे की तो चिंता ही मत करिए, पर आपको खुद को कितनी खुशी होगी, कितनी सेटिस्फेक्शन होगी। देखिए, भगवान ने सब कुछ दिया है हमको, मालिक की दया शुरू से रही है, बचपन से रही है, कोई ऐसी कमी नहीं रही बचपन से ही। पर आप समझ लीजिए, जो पैसे तो मिल ही जाते हैं, हम कंसल्ट करते हैं, भाई अपॉइंटमेंट लेता नहीं है, पर जो खुशी वो होती है ना, जो बंदा बताता है कि मेरा काम हो गया, मेरी नौकरी लग गई, वो खुशी तो समझ लीजिए आदित्य, उसका कोई पैसा कंपैरिजन नहीं कर सकता। ठीक है, पैसा तो सेकेंडरी हो जाता है उस टाइम। तो आप दूसरे की हेल्प करते हैं तो उससे बहुत फायदा होता है। तो आप, मैं कहूंगा कि जरूर से आप लोग सब सीखिए। कौन कौन सीखना चाहता है भाई, बताओ जरा। Who all want to learn? है हर्षदा, वेरी गुड, थैंक यू हर्षदा, बिल्कुल बिल्कुल। और कौन मैं सीखना एक चाहता है? एक्सपीरियंस शेयर करूं सर? हाँ, अरे करो करो, रुको रुको, मैं एक बार रिप्लाई आपको उसमें करता हूँ, हाईलाइट पे करता हूँ। यस, पता है ये, शेयर करिए। एक्चुअली क्या हुआ, आई यूज्ड टू डू टैरो कार्ड रीडिंग, मैंने आपको कॉल पे बताया था ना। तो हम्म। अ, तो लाइक मैं पुणे को गई थी, तब गुरुदेव आए थे। तो गुरुदेव ने अचानक से बोल दिया कि बंद कर दो टैरो, इट्स नॉट गुड फॉर यू। तो तो मेरा पूरा लाइक उस पे पूरा मेरा लिविंग चलता था, लाइक पूरा मैं योगा तो साइड बाय साइड करती थी, बट टैरो एंड हीलिंग्स वाज माय मेन प्रोफेशन। तो उसके बाद मैंने बंद कर दिया। मेरे मम्मी ने मेरे सामने वो कार्ड्स जला दिए, गुरुजी ने नहीं बोला तो। क्या एंड बात है। तभी से लाइक आई वाज फेसिंग सम, अभी तक आई एम फेसिंग लाइक फाइनेंशियल क्राइसिस एंड ऑल। बट मुझे लगता हम्म, था कि गुरुजी कुछ अच्छा जरूर देंगे। एंड आई सॉ बिल्कुल, योर एड, एंड आई सॉ योर एड वेरी अबाउट, नाइस। तो मैंने सोचा हमारी कि फर्ज, नहीं नहीं, बिल्कुल यही आपको होगा चैंपियन जो। बनाएंगे हम। वेरी गुड, तो वेरी मैंने गुड। सोचा कि यही होगा अगर गुरुजी बेस्ट देना चाहते थे। इसलिए। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट, नो डाउट। मैं आपको बताऊं, मैं आपको और अंदर का एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे पास कितने लोग जब मालिक के पास जाते हैं या आ रहे हम्म होते हैं, उनको कहीं मेरा वीडियो मिलता है एंड दे गॉट हम्म इंस्पायर, तो कहीं ना कहीं वो हम्म गुरु ही भेजते हैं हमको, वही रास्ता दिखाते हैं। ठीक है, हम्म और मतलब कई सारे लोग हमसे शेयर करते हैं कि हमने बोला उनको कि सीख रहे हैं, तो पूछते कहाँ सीख रहे हो, तो बोलते हैं यहाँ पंडित जी सीख रहे हैं, तो बोलते हैं हाँ ठीक है। मतलब उनको ही पता है कौन सही सिखाएगा, ठीक है, कौन करेक्ट अच्छा करेक्ट। सिखाएगा बेसिकली। समझ रहे ना, क्योंकि ज्योतिष भी हर किसी से नहीं सीख सकते आप। ठीक है, यस सर। जो सही में ज्ञानी हो, जिसको सही में पता हो, जो सही आपको ज्ञान दे सके, अच्छा दे सके और अच्छे राह पे ले जा सके, वो बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग सीखिए, इसमें संशय करने का तो कोई स्कोप ही नहीं है। सीखने का भी डाउट नहीं करिए कि मैं सीख पाऊंगी, नहीं सीख, बिल्कुल सीख पाएंगे। हमने आपको लिंक डाल दिया है। ज्यादा कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, मेरे को 9810227498 मेरा फोन नंबर है, मैंने लिखा भी है, हर्षदा डाल देना मेरा नंबर वापस से। तो क्या है उसमें जो है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन करना चाहता है भाई, वीडियो ऑन करके बता तो दो। हाँ, वेरी गुड किरण, रीमा जी करना चाहती हैं, अर्चना करना चाहती हैं। अर्चना, वेरी गुड, बिल्कुल करो, जरूर करो। आशिमा, जरूर करो आप भी। डॉक्टर हनुमंत, बिल्कुल करिए आप। ठीक है, हीना जी, सिद्धर जी, आप भी करिए, मैं तो कहता हूँ। कुमार जोशी, श्वेता, सब लोग करो। अब ये स्टार्ट हो रहा है, 22 तारीख को इनिशिएट करेंगे हम, और फिर एवरी संडे 8 से 10, 1.5 घंटे की क्लास है, ज्यादा नहीं। 1.5 घंटा आप दे दीजिए, आप लाइफ में एक नए चीजों में चले जाएंगे। मतलब आप एक तो देखो, आप खुद अनेबल होंगे पैसा कमाने के लिए, दूसरे की सेवा करने के लिए, और आपका खुद का मान प्रतिष्ठा रुतबा बढ़ेगा। ये बात श्योर शॉट लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आज हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, हाँ, अर्षदा ने नंबर डाल दिया, नंबर नोट कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जय गुरुदेव, टेक केयर, जय।